ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ پیار دوستو، اس سے قبل آپ انگار کی 23 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 24 ملاحظہ فرمائیں۔ میں ہیر کی حالت دیکھ کر شدید سراسیمگی کا شکار ہو گیا۔ ہیر کے سر میں شدید درد ہے بیٹا، کریم بابا نے بتایا۔ تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلو نا، گاؤں میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو دیر کس بات کی ہے، گاڑی جوڑ دو، ہم ابھی شہر چلتے ہیں، اس کی تو حالت تباہ ہو رہی ہے۔ قدر توقف کے بعد کریم بابا بیل کو گاڑی میں جوتنے کے لیے چلا گیا۔ مجھ سے ہیر کی حالت دیکھ ہی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر دھیرے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہیر دیکھو، میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، مجھ سے بات کرو نا۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گھنے بادلوں کے پیچھے سے چاند کی جھلک نظر آئی ہے، پھر وہ چاند دوبارہ بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ میرے سر میں بے حد شدید درد ہے، اس نے بھیچی بھیچی آواز میں کہا۔ تم فکر نہ کرو ہیر، بابا کریم بیل گاڑی جوڑ رہا ہے، ہم پھر شہر چلیں گے، ڈاکٹر پھر تمہیں دوائی دے گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ ہیر نے اتنا کہہ کر ہلکی سی چیخ ماری اور اپنے سر کو پوری قوت سے جکڑ لیا۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہیر، اللہ بڑا کارساز ہے، وہ ضرور تمہیں شفا دے گا۔ یک لخت مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہیر کے جسم کا تناؤ کچھ کم ہو گیا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ تم نے ابھی کیا کہا ہے؟ ایک بار پھر کہو، ہیر نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں پر جم گئے تھے۔ میں نے قدرے حیرانی کے ساتھ اپنی بات دہرائی۔ میں نے کہا کہ اللہ بڑا کارساز ہے، وہ ضرور تمہیں شفا دے گا۔ اچانک ہیر کے چہرے پر ہیجان کے تاثرات کا غلبہ ہونے لگا۔ اب اس کے چہرے پر کرب کے نہیں جوش کے آثار نظر نہ لگے۔ صرف ایک بار اور کہو سعید، تمہارے منہ سے جوں ہی رب ذوالجلال کے تعریفی کلمات نکلتے ہیں مجھے اپنے سر کے درد میں کمی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ میں نے ایک بار پھر وہی مقدس الفاظ دہرا دیے۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ ہیر کے چہرے کی چمک لوٹ آئی ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر زندگی جھلکنے لگی۔ یوں لگا جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہیں رہی ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں غلام سعید، ہیر نے جذبات کے بوجھ سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہاری زبان میں جادو کا اثر ہے، میرے سر کا درد بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ یہ میری زبان کا جادو نہیں ہے ہیر، یہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کی تاثیر ہے۔ میں خود بھی شدید جذباتی ہیجان کا شکار ہو رہا تھا، ورنہ مجھ جیسے گناہ گار شخص کی کیا اوقات کے۔ نہیں ایسا مت کہو، ہیر نے جلدی سے کہا۔ بے شک شفا دینے والی اللہ کی وعدہ لا شریک ذات ہے، لیکن میرے لیے تو اس نے تمہیں ہی مسیحا بنا کر بھیجا ہے نا۔ اسی وقت بابا کریم بخش کمرے میں داخل ہوا۔ جلدی کرو بیٹا غلام سعید، ہیر کو میرے ساتھ مل کر سہارا دو، میں نے بیل گاڑی تیار کر دی ہے۔ میں ٹھیک ہو گئی ہوں بابا، ہیر نے خوشی سے معمور لہجہ میں کہا۔ بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، سعید نے مجھے بالکل ٹھیک کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ تم ٹھیک ہو گئی ہو؟ کریم بابا نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ غلام سعید نے تمہیں ٹھیک کر دیا، مگر کیسے؟ یہ ایسے ہی کہہ رہی ہے کریم بابا، میں نے شرمندہ سا ہو کر کہا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور یہ ٹھیک ہو گئی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، سعید نے میرے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے اور مجھے شفا مل گئی۔ یہ تو کرامت کی طرح کی بات ہے، سعید ضرور اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ مجھے مزید شرمندہ مت کرو ہیر، تم نہیں جانتی کہ میں کتنا گنہگار اور بدکردار شخص ہوں۔ بس ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں، ہیر نے چہکتے ہوئے کہا۔ نہیں ہیر، میں نے کہا، ڈاکٹر کے پاس تو تمہیں جانا ہی پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ درد عارضی طور پر کم ہو گیا ہو، یعنی کہ اس وقت دوبارہ ہو جائے، تمہیں ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ کریم بابا اور ہیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کریم بابا نے کہا، سعید ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس ضرور چلنا چاہیے، ویسے بھی لدو تیار کھڑا ہے، رات ہونے سے پہلے واپس لوٹ آئیں گے۔ قطرے ہچکچاہٹ کے بعد ہیر تیار ہو گئی، وہ اپنے قدموں پر چل کر بیل گاڑی پر بیٹھی۔ اسے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ چل بھائی لدو، اب ذرا پھرتی دکھا، ہمیں رات سے پہلے واپس بھی آنا ہے، بابا کریم نے بیل کی کمر پر زوردار تھپکی دے کر کہا۔ اگلے ہلے میں بیل گاڑی تیزی سے روانہ ہو گئی۔ لدو کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹی زور زور سے بج رہی تھی۔ گھنٹی کی آواز سن کر مجھے کئی دن پہلے کی وہ رات یاد آ گئی جب میں رات کے اندھیرے میں جنگل کی تنہائی میں اپنے انجام کا منتظر تھا۔ چند ہی دنوں میں ہم لوگوں کے درمیان کتنے مضبوط رشتے استوار ہو گئے تھے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بے غرض محبت بہت جلد استوار ہو جاتی ہے، جبکہ اس کی خوشبو مرتے دم تک مشاہ میں چاہ کو معطر رکھتی ہے۔ کوٹ چٹا پہنچنے کے بعد ہم سیدھے سرکاری اسپتال پہنچ گئے۔ جمعے کے دن کی وجہ سے بڑا ڈاکٹر اسپتال میں نہیں تھا۔ کریم بابا نے بتایا کہ بڑے ڈاکٹر کا بنگلہ اسپتال کے احاطے ہی میں ہے۔ میں نے ان دونوں کو وہیں بیل گاڑی میں بیٹھا رہنے دیا اور خود ڈاکٹر صاحب کے بنگلے پر پہنچ گیا۔
घंटी के जवाब में दरवाज़ा एक नौमर लड़के ने खोला। बेटे डॉक्टर साहब घर पर हैं? मेरा नाम गुलाम सईद है और मैं बहुत दूर से उनसे मिलने आया हूँ। अबू घर पर मौजूद हुए मगर वो घर पर मरीज नहीं देखते। आप सुबह अस्पताल आ जाएं। बेटे आप अपने अबू से कहें कि हम बहुत दूर गांव से आए हैं, सिर्फ चंद मिनट के लिए मरीज़ा को देख लें, इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा मैं इन्हें बताता हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब खुद दरवाजे पर आ गए। वो इस वक्त कुर्ता शलवार में मलबूस थे, चेहरे पर नरमी थी, आंखों पर उन्होंने सुनहरी फ्रेम का चश्मा लगा रखा था। बुढ़ापा अभी उनसे काफी फासले पर था। क्या है भाई, एक जुमा का दिन ही तो मिलता है जरा आराम करने को, इस दिन भी तुम लोग चैन नहीं लेने देते। मुझे बेहद अफसोस है डॉक्टर साहब, हमने आपको बेवक्त तकलीफ दी दरअसल। अच्छा तुम ये बताओ कि मरीजा कहाँ है? वो यहीं है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, मैंने जल्दी से कहा। वो डॉक्टर हकीकतन कोई बहुत नेक दिल इंसान था। अच्छा तुम उसे लेकर आओ, मैं इतने में घर के अंदर से अपने आलात लेकर आता हूँ। मैंने खुशी खुशी करीम बाबा और हीर को बताया कि बड़ा डॉक्टर हीर को घर पर देखने के लिए तैयार है। करीम बाबा और हीर ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हीर ने गोया बादल नुख्वास्ता कहा चलो। मैं इन दोनों के रवैये को समझ नहीं पा रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं इन्हें जबरदस्ती यहाँ घसीट लाया हूँ, वरना इनकी तो यहाँ आने की कतन मर्जी नहीं थी। हम डॉक्टर साहब के बंगले पर पहुंचे तो बंगले के ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था। एक नौकर पहले से हमारा मुंतजिर था। उसने हमें अंदर ले जाकर बिठाया और कहा कि डॉक्टर साहब अभी आते हैं। मैं ड्राइंग रूम की सजावट देखता रहा। डॉक्टर साहब का ज़ौक़ बेहद नफीस था। दीवारों पर आवेज़ा खूबसूरत तस्वीरों से वाज़ेह होता था कि वह आला किस्म की तस्वीरों का भी कदरदान है। करीम बाबा कदरे मुस्तरिब था। बिलाखिर वो उठ खड़ा हुआ। मैं ज़रा लद्दू को खोलकर अभी वापस आता हूँ। मैंने असबात में सर हिला दिया। हीर ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, वो खुद भी बेहद मुस्तरिब थी। अच्छा तो तुम लोग आ गए, डॉक्टर साहब ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा। फिर उनकी निगाह हीर पर पड़ी तो उनके चेहरे पर हीर के लिए शनासाई की लहर उभरी। अरे ये तो हीर है, वो बाबा करीम बख्श कहाँ है? डॉक्टर साहब आप हीर और बाबा करीम बख्श को जानते हैं? मैंने शदीद हैरानी के आलम में कहा। अजीब बात है, हीर और करीम बाबा ने मुझे इशारतन भी नहीं बताया कि वो पहले भी डॉक्टर साहब से मिल चुके हैं। भला इसमें छुपाने की कौन सी बात थी? हाँ भाई मैं कई बार इस बच्ची का मुआयना कर चुका हूँ, लेकिन तुम कौन हो? इससे पहले तो मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैं इनका अजीज हूँ, कुछ दिन पहले इनके पास आया हूँ। अच्छा अब कैसे आना हुआ तुम बताओ हीर, क्या आज फिर तुम पर सर दर्द का दौरा पड़ा है? हाँ आज फिर इसे सर दर्द का दौरा पड़ा है। क्या पहले भी इस पर यह दौरा पड़ता रहा है? मैंने शदीद हैरत सता होकर पूछा। अच्छा तो तुम्हें नहीं पता, खैर मैं जरा हीर का मुआयना कर लूँ, इसके बाद तुम्हें बताता हूँ। हैरत की बात है तुम खुद को इनका करीबी अजीज बताते हो और तुम्हें इतनी बड़ी बात मालूम नहीं है। हीर चुपचाप डॉक्टर साहब का मुंह तक रही थी। इसका बस चलता तो डॉक्टर साहब को एक लफ्ज न बोलने देती, जाने वो मुझसे क्या छुपाना चाहते थे। डॉक्टर साहब बहुत देर तक हीर का मुआयना करते रहे। मैं इस तमाम अरसे के दौरान में शदीद इज़्तिराब का शिकार रहा। तरह तरह के अंदेशे मुझे घेरे रहे। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब ने अपना मुआयना ख़त्म कर लिया। फिर वो मुझे एक तरफ ले जाकर बोले, तो मुझे पढ़े लिखे मालूम होते हो जवान, चुनाचे मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकोगे। अगरचे अभी हीर की तबीयत कदरे बेहतर है, लेकिन यकीन करो ये कैफियत आर्जी है, इस पर किसी भी वक्त दोबारा दर्द का दौरा पड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब इस पर यह दौरा पड़ता क्यों है? मैंने इसका काफ़ी दिनों तक इलाज किया है, मैंने इसे बहुत सी दवाएं खिलाई। मेरी इन दवाओं से इसका दर्द आर्जी तौर पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद ये दर्द दोबारा होता है। मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि कहीं इसे कोई पेचीदा मर्ज ना हो। मैंने इसके कई टेस्ट करवाए। आहिस्ता आहिस्ता मेरा शक यकीन में बदलने लगा। ताहम अभी एक टेस्ट बाकी था जिसके बगैर मैं पूरे यकीन से इसके मर्ज की नौइयत को समझ नहीं सकता था। मैंने करीम बख्श को कहा कि वो अपनी बेटी का ये टेस्ट करवाए, लेकिन इसने नहीं करवाया। लेकिन डॉक्टर साहब इसने ये टेस्ट क्यों नहीं करवाया? एक वजह तो ये भी है कि यह टेस्ट बहुत महंगा है, इस पर कई हज़ार रुपए सर्फ होते हैं। पाकिस्तान में इस टेस्ट की सिर्फ एक मशीन है जो कराची के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में है। दूसरी बात यह है कि करीम बख्श ने एक बार बातों ही बातों में मुझे बताया था कि वो हीर को किसी पीर के पास लेकर गया था। इस पीर ने बताया कि हीर पर कोई जिन्न आशिक है, इसी वजह से इस पर सर दर्द के दौरे पड़ते हैं। मैंने उसे सख्ती से मना किया कि वो पीरों फकीरों के चक्करों में ना पड़े, बल्कि हीर का मुकम्मल इलाज करवाए। मेरा ख्याल था कि मेरी बात इनकी समझ में आ जाएगी, लेकिन मेरी बात का उल्टा असर हुआ। इन दोनों ने मेरे पास आना ही छोड़ दिया। ये शायद इस डब्बा पीर से जिन निकलवाने की कोशिश करते रहे हैं। अब खुदा जाने इनके दिल में क्या आई कि ये इस पीर के पास जाने के बजाय मेरे पास आ गए। वैसे एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, अगर हीर का मर्ज जल्द ही तशखीस ना हुआ और इसके बाद इस मर्ज को जड़ से उखाड़ने के लिए फौरी कार्रवाई ना की गई तो ये किसी भी वक्त अपनी जान से हाथ धो सकती है। अगर तुम इन्हें समझा सकती हो तो ज़रूर समझाओ कि चंद हज़ार रुपए के लिए इंसानी ज़िंदगी दाव पर ना लगाएं। आपके ख्याल में हीर को क्या बीमारी है? मैंने पूछा।
मुझे 100% तो नहीं, अलबत्ता 90% यकीन है कि हीर को ब्रेन ट्यूमर है। समझते हो ना ये किस बला का नाम है? आपका मतलब है हीर के दिमाग में फोड़ा है? मैंने लरसते दिल के साथ पूछा। मेरे दिलो दिमाग की अजीब हालत थी। रंजोगम का एक तूफान था जिसने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। डॉक्टर साहब नहीं जानते थे कि इन्होंने मेरे कानों में कैसा तेजाब उंडेल दिया है। हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूँ, हीर के दिमाग में फोड़ा है। तुम्हें शायद मालूम हो कि ये कैसा जानलेवा मर्ज है। ऐसा मरीज जरा मुश्किल ही समझता है, लेकिन अगर सही वक्त पर मर्ज की तशखीस हो जाए तो मरीज की जान बचाने के लिए कुछ न कुछ किया जा सकता है। खुदा करे हीर का मर्ज अभी ला इलाज न हुआ हो, लेकिन अगर मजीद गफलत बरती गई तो इसका बचना नामुमकिन हो जाएगा। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मैं खुद हीर का इलाज करवाऊंगा। अब मुझे यह बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं चंद दिनों के बाद खुद भी कराची जा रहा हूँ। उस वक्त तक तुम लोग रकम वगैरह का इंतजाम कर लो। मैं हीर को अपने साथ ही कराची ले जाऊंगा। तुम या करीम बाबा मेरे साथ चलना। मैं कराची में अपने सामने हीर का टेस्ट करवा लूंगा। अगर मेरा अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ तो हीर के दिमाग का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। खैर, वो ऑपरेशन तो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी हो सकता है। इस ऑपरेशन पर कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा। डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया था उसने मुझे हिला कर रख दिया। यह सब कुछ मेरे ख्वाबो ख्याल से भी बढ़कर होलनाक था। चंद दिन की रफाकत के बाद मैं हीर को अपने दिल के इतने करीब महसूस करने लगा था कि इसकी जुदाई के तसव्वुर ही से कलेजा मुंह को आता था। इसको खोकर मेरे पास कुछ भी ना बचता। अगर खुदा ने हीर को मुझसे इतनी जल्दी छीनना था तो उसे मुझसे मिलाया ही क्यों था? क्या इसलिए कि मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए एक सुलगता हुआ दाग बाकी रह जाए? डॉक्टर साहब की गुफ्तगू जारी थी। देखो भाई, मैं तुम्हें किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहता। यह बेहद नाजुक मामला और बेहद अहम ऑपरेशन है, इसी लिहाज से यह बेहद महंगा भी है। मैं तुम्हें कतई रकम तो नहीं बता सकता, तहम मेरा अंदाजा है कि इस ऑपरेशन पर 1 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं। इसके बाद भी इस बात की कोई जमानत नहीं कि मरीज बच ही जाएगा। इंसान के बस में तो यही है कि वो मरीज को देखे। शिफा देना तो बहरहाल अल्लाह ही के हाथ में है। आप फिक्र ना करें डॉक्टर साहब, हम किसी न किसी तरह ये इंतजामात मुकम्मल कर लेंगे। मैंने हीर के लिए दुआएं लिख दी हैं, ये इसे खिलाते रहो। मैं तुम्हें अपने टेलीफोन नंबर लिख देता हूँ। अगर किसी वक्त हीर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फ़ौरन मुझे इतला कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैंने ममनूनियत से लबरेज लहजा में कहा। अच्छा, अब तुम लोग जाओ और मुझे आराम करने दो। जब तुम टेस्ट के लिए रकम जमा कर लो तो मुझे इतला कर देना। डॉक्टर साहब, आपकी फ़ीस? मैंने झिझकते पूछ ही लिया। वो कितना ही नेक दिल शख्स हो, लेकिन बहरहाल था तो डॉक्टर ही। अरे छोड़ो फीस को, बस कराची चलने की तैयारी करो। इस जाहिल बुड्ढे करीम बख्श को समझा देना कि इस डब्बा पीर को आग में झोंक दे। अगर एक बार बेटी चली गई तो सारी दुनिया के डब्बा पीर इसे वापस नहीं ला सकते। डॉक्टर साहब ने ये अल्फाज हीर के सामने कहे। हीर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हम दोनों डॉक्टर साहब के बंगले से बाहर निकले तो देखा कि करीम बाबा अपने लद्दू के पास बैठा है। हमें आता देखकर वो उठ खड़ा हुआ। क्या बताया डॉक्टर साहब ने? उसने बेचैनी से पूछा। वही जो तुमने मुझे नहीं बताया। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया। मैंने कदर नाराजगी के साथ कहा। मुझे इस बात से दुख पहुंचा था। लेकिन हमने क्या किया है बेटा? करीम बाबा ने अनजान बनते हुए पूछा। आखिर मुझे हीर की बीमारी के मुतालिक बताने में क्या हर्ज था? अगर हम तुम्हें इसके सरदर्द के मुतालिक बताते तो फिर संगल वाले पीर और जिन के मुतालिक भी बताना पड़ता। तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम यकीनन हमारा मजाक उड़ाते। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम दोनों कराची जाने की तैयारी करो। डॉक्टर साहब ने बताया है कि यह टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। मैंने मजबूत लहजे में कहा। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। करीम बाबा ने पुजमुर्दा लहजे में कहा। इसे शायद रकम की फिक्र सता रही होगी। मैंने उसके दिमाग का बोझ कुछ हल्का करना चाहा। तुम रकम की फिक्र ना करो बाबा, जिस कदर तुमसे हो सके कर लो, बाकी रकम का इंतजाम मैं कर लूंगा। करीम बाबा ने कदरे हीलो हुज्जत की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। अभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस रकम का इंतजाम कैसे करूंगा। वैसे इतना मुझे यकीन था कि मैं किसी न किसी तरह ये रकम जरूर हासिल कर लूंगा, लेकिन बात सिर्फ इसी चंद हजार की रकम की तो नहीं थी। आखिर ऑपरेशन के लिए भी तो 1 लाख की खातिर रकम दरकार थी। इस रकम का इंतजाम मैं कैसे कर पाता? नोट कोई दरख्तों पर तो नहीं उगते कि मैं जितने चाहे तोड़ लेता। इस कदर कम वक्त में इतनी बड़ी रकम का हसूल भला कैसे मुमकिन हो सकता था? मैंने अपनी जुबान में कभी भी दौलत के हसूल का नस्बुल ऐन नहीं बनाया। दौलत तो हाथ का मैल होती है। जिस कदर भी इसकी तलब करो, इसके नाज नखरे सहो, यह हमसे दामन बचाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर इससे बेनियाजी का रवैया इख्तियार करो तो यह हमारे पीछे आने पर मजबूर हो जाती है। यूं तमाम अकवाल ज़री अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मुझे इस नामुराद शय की शदीद ज़रूरत थी। मैंने अपने दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया कि अगर इस रकम के हसूल के लिए मुझे अपनी जान पर भी खेलना पड़ा तो मैं गुरेज नहीं करूँगा।
हम लोग गांव पहुंचे तो रात गहरी हो चुकी थी। मैंने भट्टे पर से आते हुए अपने मातहत कुलसमा को बता दिया था कि मैं जुमे की शाम को लौट आऊंगा। वो इस वक्त तक मेरी आमद की तरफ से मायूस हो चुका होगा। वो यही समझ रहा होगा कि मैं अब सुबह ही आऊंगा। पापा करीम और हीर ने मुझे रोकने की बेहद कोशिश की, लेकिन मैं इस वक्त भट्टे की जानिब रवाना हो गया। मैं चाहता था कि मैं जब तक इस भट्टे पर काम कर रहा हूं मेरी तरफ से किसी को शिकायत का मौका ना मिल सके। चांद की 10-12 तारीख थी। आसमान पर एक भी बादल मौजूद नहीं था। हर चीज चांदनी में नहाई हुई थी। मुझे भट्टे तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। बड़ा ही दिलकश मंजर था। ऐसे मौका पर दिल में ख्वामखवाह ही तरंग उठने लगती है, लेकिन मेरा दिल हीर की बीमारी की वजह से परेशान था। लिहाजा मुझे सब कुछ बेकैफ लग रहा था। खाने के नाम पर भी आज फीके चावल और पतली पानी जैसी दाल मिली थी। मैं अपनी कोठरी के पास पहुंचा तो इसमें ताला लगा हुआ नजर आया। इसकी चाबी गुलजमा के पास ही थी। जाने वो बदबख्त किधर निकल गया होगा। मैं उसे इधर उधर तलाश करने लगा। मैं कोठरियों के अकम में कुछ ही दूर गया होगा कि अचानक मैं चौंक पड़ा। मैंने किसी की खुसर फुसर की आवाज सुनी थी। मैं दबे पांव उस जानिब पड़ा जिधर से आवाज सुनाई दे रही थी। इस तरफ चिकनी मिट्टी की बनी हुई कच्ची ईंटों की दीवारें खड़ी हुई थी। मैंने दीवार की ओर से जरा झांक कर देखा तो मेरे सारे जिस्म में सनसनी सी तोड़ गई। वो गुलजमान था। उसके साथ जो औरत थी उसका नाम खैरा था। इस वक्त खैरा किसी खुली किताब के मानिंद नजर आ रही थी और वो जाहिल गुलजमा उसे वर्क वर्क पढ़ रहा था। मुझे अपने कदम जमीन में गड़ते हुए महसूस हुए। जमीन पर बिछी हुई सफेद चादर इस वक्त गुनाह का अखाड़ा बनी हुई थी। मैं चंद लम्हों से ज्यादा वो सब कुछ नहीं देख सका। मुझे आज तक इल्म नहीं हो सका गुलजमा भी इस तरह की मकरूह हरकतें करता रहता है। फिर मैंने खैरा की आवाज सुनी, तुम आखिर कब तक मुझे इस तरह खराब करते रहोगे गुलजमान? खुदा के लिए अब तुम मुझे माफ कर दो। अभी से कहाँ खैरा, अभी तो तुम सिर्फ 3 बार मेरे पास आई हो। यह भी तो देखो कि तुम्हारा जुर्म कितना बड़ा है। अगर कमालुद्दीन खान को इल्म हो जाए कि तुम और तुम्हारा शौहर भट्टे की खुश्क लकड़ियां चुरा कर बेचते रहे हो तो जरा सोचो कि तुम लोगों का क्या हशर होगा। हमने वो लकड़ियां बेची नहीं बल्कि चूल्हे में जलाई थीं। हम सिर्फ 2 बार यहां से लकड़ियां लेकर गए थे और वो भी बहुत छोटी छोटी। इससे क्या फर्क पड़ता है? चोरी तो चोरी है ना, गुलजमान ने अपनी मकरू आवाज में कहा। गुस्से की शिद्दत से मेरा खून खौल रहा था। वो कमीना शख्स उस गरीब औरत को ब्लैकमेल करके अपने शैतानी जज्बात की तस्कीन करता रहता था और ये सिलसिला जाने कब तक जारी रहता। एक बार तो मेरे दिल में आई कि अभी और इसी वक्त इस गलीज शख्स का गला घोंट दूं, लेकिन फिर मैंने अपने आप पर काबू पा लिया। मैं जिस किस्म के हालात में आन फंसा था इस लिहाज से तो यह मामूली वाक़या था। यहाँ का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। अगर कमालुद्दीन खान के कारिंदे बदनीयत थे तो मैं इनकी फितरत कैसे बदल सकता था? मैं चुपचाप अपनी कोठरी के दरवाजे के पास आन खड़ा हुआ। कुछ देर बाद गुलजमान खान चूमता हुआ डगमगाता आन पहुंचा। खैर तो है गुलजमान, आज कुछ ज्यादा ही तरंग में हो, मैंने तंजिया लहजा में कहा। तुम आ गए मुंशी साहब। मैं जरा चांदनी रात का मजा लेने टीलों की तरफ निकल गया था। उसने झींपे हुए लहजे में कहा, मेरे ख्याल में अब इस चांदनी रात का पीछा छोड़ ही दो तो बेहतर है। तुम्हें कम अज कम पिछले मुंशी के अंजाम ही से सबक सीखना चाहिए। अच्छा ये बताओ मुंशी साहब, तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? गुलजमान ने शर्मसार सा होकर बात बदलने की कोशिश की। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सोना चाहता हूं। तुम ये खिड़की बंद कर दो। तुम्हारी चहती चांदनी रात में आंखों में चुभ रही है। अगला दिन मामूल के मुताबिक गुजरा। अलबत्ता मैं तमाम दिन यही सोच विचार करता रहा कि फौरी तौर पर 5-6 हजार का बंदोबस्त कैसे हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि कमालुद्दीन खान से मांग कर देखूं, जाने वो क्या जवाब देता। बहरहाल आज शाम को तो मुझे हवेली जाना ही था। एक बार कहकर देखने में तो कोई हर्ज नहीं था। अगर इनकार कर देता तो फिर देखा जाता। शाम को हवेली की तरफ रवाना हुआ तो मेरी जेब में 15,000 रुपए मौजूद थे। आज मुझे हवेली में जाकर ही हिसाब किताब लेना था। भट्टे से हवेली का अच्छा खासा फासला था। रास्ते में कई जगह वीरान इलाका भी आता। अभी रात का अंधेरा पूरी तरह नहीं फैला था। मैं तेज तेज कदमों से चला जा रहा था। मैं अभी हवेली से आधे फासले पर पहुंचा होगा कि अचानक मुझे 4 नकाब पोशों ने घेर लिया। वो भारी भरकम थे और पस्तूलों से मुसल्ला।